अगर आप कॉमर्स फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, then this video is very very beneficial for you. Because in this video, I have shared a premium recording of one of my top mate call with one of the students like you who had just appeared for their class 12 examination, and there are so many questions he had inside his mind revolving around his head, and that's so obvious. And I have discussed about the types of courses, the courses which would give the best ROIs, and how to tackle the nitty gritties and self doubts which goes around while selecting these courses. So this video is going to be a very very important video for all of you, and for the parents of the students who are in the same situation right now, educate yourself and try to help them by sharing this video to them as well. So who am I? Just to give a brief introduction of me before you having trust on me whether I can give you the career guidance or not. I am Swamidip, running this YouTube channel Swami Shantikuri, which gives you education content like this. I have had my graduation from National College of Commerce and Economics, Mumbai, and I am currently in my CA final level. I have done my articleship from Grant Thornton, one of the big five, and currently doing my articleship in transaction advisory and due diligence domain. And I have cleared my CA Inter and CA Foundation in my first attempt. So I think I have reasonable experience to guide you in this matter. And watch this full video. And if you have any doubt post that, I hope there won't be because I have discussed much of it. But if you have still, then you can connect with me via LinkedIn, mail, every detail I've given in the description box. So without any ado, let's jump into the main content of this video. सर अभी तो जस्ट अभी 12th अभी एग्जामिनेशन दी है 12th की। सर करियर ऑप्शंस के बारे में थोड़ा जानना था। Okay. ये अकाउंट के रिलेटेड मेरा इंटरेस्ट अकाउंट में है। So करियर प्रोफेशनल कोर्सेज। okay, fine. So you are having commerce, right? In 11th 12th. यस। आप कहाँ से हो? मैं अहमदाबाद से, गुजरात। ओके। सो आप मतलब अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के बारे में सोच रहे हो? नहीं, वो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं ना, जैसे सीए, सीएस, सीएमए, उस टाइप। अच्छा, प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हो। ठीक है, तो आप लाइक सीए अगर करना चाहते हो तो सीए फाउंडेशन है जिसके लिए आप प्रिपेयर हो सकते हो। मतलब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आपको अकाउंटिंग लाइन में जाना है, ऑडिटिंग लाइन में जाना है, या कंप्लायंस में जाना है। सो कंप्लायंस के लिए सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी। देन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कॉस्टिंग, देन यू कैन गो फॉर सीएमए। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लॉ, यू कैन गो फॉर क्लैट, मतलब एलएलबी यू कैन वाउच फॉर। सीएफए इज देयर फॉर फाइनेंस रिलेटेड कोर्स। रिस्क मैनेजमेंट के लिए एफआरएम है। आप नोट करते जाओ, और अगर कोई भी क्वेश्चन है मुझे इंटरप्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है? एंड या सीएफए, देन एफआरएम फॉर रिस्क मैनेजमेंट, and there is CFP for financial planning. मतलब for example, if you are willing to go for wealth management of a company or individual, then you can go for CFP course. Sorry for interrupting, sir. Sir, I am Nikhil's sister. Actually, I am her elder sister. Hello. Yeah. Yes, sir. Yeah. So currently, actually, I am also pursuing a company secretary, and I am in executive level. So my brother Nikhil has he has wanted to pursue CA, but me and my elder brother, because we are three brother and sister, so my elder brothers and me suggest him to not to pursue CA because we know his abilities and we know his strength and weakness. We suggested him to not to pursue CA. He should do any other courses because there are numerous courses available there. Yeah. But he tell us that he is very interested in CA. But my dad and me and my siblings are saying him to not to pursue that. So can you guide him that if he had to do CA or not by evaluating his strength and weakness? Because you are already a CA student, then so you will guide him better than us. So this Yeah, will be sure, helpful sure. for him. Actually, Yeah, this is the motive. He is a little bit introvert and he just passed 12 and he has no little clarity. So that's why I interrupt in this session and tell you about the little. Yeah, got it. Yes, so That's a good way to think. हाँ, so yes, तो आप basically, निखिल से बात कर लीजिए. हाँ, तो निखिल, like for CA, two strengths you always have to have if you are proceeding with this course. First is your analytical skill, ठीक है? Analytical skill means अगर आप CA फाउंडेशन, CA इंटर या CA फाइनल में एग्जाम देते हो, अगर आप सिर्फ रट्टा मारते हो या सिर्फ मेमोराइज करके आंसर देने में फ्लेक्सिबल हो, देन सीए पास करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका स्ट्रेंथ एनालिटिकल कोई भी चीज को समझ के उसको इंटरप्रेट करने में है, देन यू कैन गो फॉर सीए। दिस इज वन ऑफ द थिंग। सेकंड इज आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग चाहिए, क्योंकि in CA course they expect that whatever is written in the module, I think your sister also might know that the situation of the professional courses are like that, कि they expect that you write whatever is there in the module. Above that, your analytical skill will help to tackle the new questions. अभी सीए का जो कोर्सेस मतलब कोर्स स्ट्रक्चर है वो बहुत चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था, पहले आप PYQ करके चले जाओ, देन ABC एनालिसिस करके चले जाओ, यू कुड हैव पास्ड। बट लाइक माय एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल, आई हैव आल्सो क्लियर्ड माय सीए इंटर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो माय एक्सपीरियंस इज दैट सिर्फ मॉड्यूल पढ़ने से एंड पास ईयर के क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू हैव बोथ द स्किल्स, वन दैट व्हाटएवर इज रिटन इन योर मॉड्यूल यू कैन इजीली राइट दैट इन योर आंसर शीट, एंड ऑल्सो एनालिटिकल स्किल, मतलब हर एक अटेम्प्ट में कुछ नए नए क्वेश्चन आते हैं, एंड योर एबिलिटी टू टैकल न्यू क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है सीए पास करने के लिए। तो अगर आपको लगता है ये दो स्ट्रेंथ्स आपके अंदर है, देन यू कैन प्रोसीड अहेड।
मैं तो सजेस्ट करूंगा पहले आप फ्री में जो अवेलेबल है, मतलब मॉड्यूल्स तो फ्रीली अवेलेबल है, तो आप यू कैन गो एंड डाउनलोड दिस मॉड्यूल्स फ्रॉम आईसीआई वेबसाइट एंड जस्ट रीड वंस एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन जस्ट फॉर योर यू नो बेनिफिट ऑफ डाउट। तो अगर आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट्स में तो मजा आ रहा है, कभी कभी क्या होता है जो स्ट्रेंथ्स होते हैं ना दैट आर नॉट इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड, बट जैसे जैसे आप करियर में आगे बढ़ते हो वो स्ट्रेंथ आपको पता चलने लगता है, देन यू बिकम मास्टर ऑफ इट। सो फर्स्ट आई वुड से दैट यू ट्राई watching some interviews of CA toppers and also just go through the modules syllabus और आप देखो कि उसमें आपका इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं। एंड ऑल्सो वन ऑफ द मेजर पॉइंट कि आप सीए क्यों करना चाहते हो वो आपके मन में क्लियर होना चाहिए। गॉट इट? तो आप हैव यू लाइक प्लान्ड एनीथिंग व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर करियर, like what you want to be? Hello? Hello? Can you hear me? Yes. Yeah, I was asking ki what career do you like want to have after 10 years? मतलब what do you want to be basically? वैसे तो सोचा था कि ये कर लूंगा या फिर सीए में का देख लूंगा, यही था दिमाग में। नहीं, एक्चुअली सीए बनना, सीए एक डिग्री है, सीए एक प्रोफेशन ऑफ कोर्स है, बट अगर आप देखोगे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सीए पासिंग एवरी ईयर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम होते जा रहे हैं। सो ओनली बिकमिंग सीए एंड देन हैविंग नो सच एस्पिरेशन विल टेक यू नोवेयर। तो सीए एक डिग्री है, बट देन आफ्टर अचीविंग दैट डिग्री आप क्या करना चाहते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको प्लान करना चाहिए। और सर अपने सीएमए के बारे में थोड़ा पूछना चाहूंगा उसका। हाँ पूछिए ना। सीएमए को देखिए स्कोप क्या है, जैसे कि कई वीडियो में देखा कि स्कोप उसका कम है। हाँ फ्रैंकली बताओ, सीएमए का स्कोप बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा कम है। मतलब ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अगर आप मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, इवन देयर आर पीपल हु ऑलरेडी बिकेम सीएमए इन माय सर्कल, वो अभी सीए कर रहे हैं, मतलब दे आर स्टार्टिंग देयर करियर अगेन बिकॉज दे फाउंड कि सीएमए में ज्यादा स्कोप नहीं है। एंड इफ यू हैव जस्ट गॉट इनटू द रिसेंट अमेंडमेंट जो न्यू टैक्स लॉ आ रहा है, देयर प्रीवियसली क्या होता था, सीएमए कुड डू द टैक्स ऑडिट्स, currently सीएमए कैन नॉट डू द टैक्स ऑडिट्स, नाउ इट्स ओनली एडवांटेज ऑफ द सीए। सो सीएमए इज अ वेरी, मैं बोल सकता हूँ बैकडेटेड प्रोफेशन राइट नाउ। सीएमए विद अदर लाइक अगर आप एमबीए करते हो देन थोड़ा बहुत एडवांटेज हो जाता है। फॉरेन कोर्सेज कौन से होंगे जिसमें फॉरेन कोर्सेज में सीएफए है, एफआरएम है, सीएफपी है। और सर एसीसीए के बारे में? सॉरी, आई देन सीमा इज देयर, सीमा। हेलो, और सर एसीसीए का क्या रेट है? ACCA is also मतलब yeah you can as a fresher you can get about 7 to 8 lakh का CTC. ACCA is like मतलब not so much as CA but yeah मतलब थोड़ा easy है than clearing CA और टाइम भी कम लगता है एंड डिफिकल्टी लेवल भी बहुत लो है, बट यू विल गेट अबाउट 7 to 8 lakhs का पैकेज इफ यू क्लियर ACCA. इन एसीसीए? Yeah, so fresher can get about 7 to 8 lakh का पैकेज in Mumbai basically. हेलो। या सर एक्चुअली मैंने ना इसको थोड़ा मैं भी इसको गाइड करने में आपका हेल्प किया था सर। इसलिए ना मैंने इसको फर्स्ट ही डिसाइड किया था कि इफ अगर ये लॉ में थोड़ा अच्छा होता, थियोरेटिकल पोर्शन में थोड़ा अच्छा होता, एक्चुअली 12th में भी है ना थियरी इसकी अच्छी है बट उतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने इसको सजेस्ट किया था कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन थियरी, और मैंने इसको हमारा एक लॉ का सब्जेक्ट भी थोड़ा रीडिंग के लिए दिया था, बट इसने कहा कि इसको इतना थियोरेटिकल पोर्शन इतना पूरा नहीं चाहिए, तो बिकॉज मैंने इसको सजेस्ट किया था बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी में भी बहुत अच्छा स्कोप है बॉयज के लिए एज वेल एज गर्ल्स के लिए भी, तो मैंने इसको सजेस्ट किया था कि आप कंपनी सेक्रेटरी करो, बट ये थियरी में एज ऑन इंटरेस्टेड नहीं है। बट सीए हमें लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसके लिए, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं ये ना 10th तक एवरेज ही रहा है, अभी 11 12th में थोड़ा अच्छा हो गया है, बट हमको लग रहा है कि आप भी जानते हैं सीए में एक बार आप स्टेप इन कर लेते हैं तो आप फिर आप स्टेप बैक नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो, मनी भी इन्वेस्ट कर रहे हो। And हाँ, तो मुझे थोड़ा लगा कि ये वाइज डिसीजन नहीं होगा इसके लिए, तो इसलिए हम भी थोड़ा कंफ्यूज थे कि देन इसको क्या करा है, बिकॉज बीबीए एंड बीकॉम इज बिकम सो इररिलेवेंट दिस डेज अंटिल एंड अनलेस आप बहुत अच्छी कॉलेज से नहीं कर रहे हो। करेक्ट ये आपने सही कहा कि बीकॉम बीबीए इंडिविजुअली तो कुछ वैल्यू नहीं है अभी के मार्केट में, तो आप कुछ गाइड कर सकते हैं कि हाँ मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि एकदम पहले ही बता देना कि सीए उसके लिए नहीं है। इट इज बेटर कि ही लाइक थोड़ा सा ही गेट्स डीपर इनटू इट, मतलब whether he likes CA or not, whether he wants, because CA में क्या होता है मैं बताता हूँ, I just don't want to vaguely motivate, but as I see my circle and career opportunities, देखो कोई भी कोर्स हो मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना, हार्ड वर्क के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, राइट? एंड वेदर यू आर गुड एट इट और नॉट, लाइक ये मैटर नहीं करता कि यू हैव लाइक पहले से आप बहुत थ्योरी में अच्छा हो कि नहीं, अब यू हैव टू गेन दैट कैपेबिलिटी। ओके, आज के जमाने में फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, अगर आप एआई के, आप तो इंजीनियर नहीं हो तो आप बोलोगे नहीं मुझे एआई के बारे में नॉलेज नहीं है सो आई वोंट लर्न एआई, बट आपको एआई सीखना ही पड़ेगा ना। अगर आप एआई नहीं सीखता बैकडेटेड रह जाओगे आप, यू कैन नॉट पेस विद द इनोवेशन और जो डायनामिज्म है अभी इकोनॉमी में। सो एक होता है कि
आपके पास वो है, लाइक यू नो दैट यू कैन डू बट यू आर नॉट एबल टू डू बिकॉज यू हैव नॉट ट्राइड इट। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो एंड सी थ्रू द मॉड्यूल्स, ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है, यू गो थ्रू द मॉड्यूल्स, यू ट्राई टू जस्ट गेट इनटू दोस कॉन्सेप्ट्स कि ये कॉन्सेप्ट आपको एक बार में पढ़ के समझ में आता है कि नहीं। तो अगर आप सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल्स एक बार देख लिए और आपको लाइक लगा कि इसमें मुझे इंटरेस्ट, आई एम गेटिंग सम इंटरेस्ट इनटू इट, आई कैन डू इफ आई डू माय हार्ड वर्क, देन आई वुड सजेस्ट या यू शुड प्रोसीड एट। बट उसके बाद अगर आपको लगता है कि नो मुझे तो एकदम बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज सीए इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, सीए में लॉ भी है, सीए में कॉस्टिंग भी है, अकाउंटिंग भी है, बीसीके करके एक सब्जेक्ट है जिसमें आप बिजनेस के बारे में सीखते हो, ठीक है। देन फंडिंग, शार्क टैंक देखते होंगे आप, शार्क टैंक के बारे में भी यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट फंडिंग, फाइनेंस, सो एवरीथिंग इज देयर। तो योर करियर प्रोस्पेक्ट एंड हॉराइजन बिकम्स मच मोर हायर, मतलब लार्जर बन जाता है। अगर आप लाइक आफ्टर यू सेल थ्रू द सब्जेक्ट्स एंड थोड़ा बहुत जानने के बाद अगर आपको लगता है नहीं आई एम नॉट इनटू इट, दिस इज नॉट माय थिंग, देन यू कैन गो फॉर अदर एरियाज, देन यू हैव टू गो फॉर लाइक सीएफए एंड जो फॉरेन कोर्सेज है। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आप एक बार आपको पसंद आ जाता है वो कॉन्सेप्ट, देन यू स्टार्ट लविंग इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद को ही यू हैव टू एनालाइज, एक स्वॉट बना लो अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का, कि दिस आर द थिंग्स वेयर आई एम गुड एट बट आई नीड टू एक्सेल, एंड some weaknesses where I think that I can you know excel if I do some hard work. ओके जैसे अगर थियरी, जैसे सीए में ऑफकोर्स थियरी बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप थियरी में अच्छे नहीं हो देन ये आपका एडवांटेज ही बन जाता है ना कि आप थियरी में अच्छे नहीं हो, प्रैक्टिकल में अच्छे हो। सो आई वुड सजेस्ट यू गो एंड एनालाइज, एक बार मॉड्यूल्स देखो, थोड़े बहुत टॉपर सीए टॉपर्स के इंटरव्यू सुनो, यू नो देयर आर मेनी पॉडकास्ट अवेलेबल, वो सब देखो, एंड तब आपको पता चलेगा वेदर यू हैव फोर्टे इनटू इट और नॉट। ऐसे वेगली बताना बहुत मुश्किल है। एंड प्रोफेशनल कोर्सेज में इंडिया में आपने बताया सीएफए एंड एफआरएम, इनकी डिमांड अच्छी रहती है ना इंडिया में और फ्यूचर स्कोप भी। देखो अगेन जैसे अगर मैं मुंबई के बारे में बात करूं, लाइक आई हैव आल्सो डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम वन ऑफ द टॉपेस्ट कॉलेज, नरसी मुंजी कॉलेज फ्रॉम मुंबई। So there I have seen that even the cream crowds, even I have some students in SRCCN, Ramjas, Kirorimal, they are the cream layers of the students. So there are also many people are doing CFA, and even in the like the three tier 3 tier 2 colleges में CFA बहुत लोग कर रहे हैं. But the practical thing is that CFA is just a certificate in India. CFA is not a degree in India. It is not recognized by UGC. Okay. Okay. Yeah. So based on the certification, the skills they provide, some companies do recognize the same, and you have to be at the right place at the right time. For example, after 12th, Nikhil does undergraduation from a good college, BCom honors, या I would not suggest BBA of course, BCom honors, या अगर integrated कोई भी course है, integrated LLB के साथ BCom, multiple courses are there. So if he does the same, and then a CFA degree would actually elevate his resume. Okay. But only CFA, अगर like you have to know what is your aspiration. अगर आप 15-20 लाख का पैकेज if you want to get, then only CFA would not suffice. CFA के साथ कुछ और होना चाहिए. बट सीए एक ऐसा कोर्स है वेयर यू कैन एम फॉर इट, लाइक सिर्फ अगर आपके पास सीए डिग्री है, देन यू कैन एम, लाइक इवन इफ यू डोंट हैव रैंक, आफ्टर 3-4 years of experience you can go to that level. Because CA and CS are our India's course and certified by MCA properly. Sorry. Okay. I understood your point, and Yeah. this is very valid. Even I also not know these facts about the CFA courses and other professional courses. And I'm also concerned about the scope of CFA because as though they are the international courses. That's why. Okay, sir. Actually, we got very good insights from this session. And sir, कुछ सर सीपीए का कैसा रहता है उसका स्कोप वगैरह, सीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ओके, सो सीपीए का क्या है? सीपीए का देयर आर 2 कोर्सेज, वन इज सीपीए ऑस्ट्रेलिया एक कोर्स है, एक सीपीए यूएस है, ठीक है। सीपीए ऑस्ट्रेलिया इज मच मोर लाइक अफोर्डेबल देन सीपीए यूएस, और दिस इज सिमिलर टू एसीसीए ओनली, द डिफिकल्टी लेवल आई वुड से अ बिट हायर देन एसीसीए, ठीक है, बट कॉस्टलियर देन एसीसीए। CPA, if you are willing to go to abroad, then it is good, okay, because CPA won't talk about the regulations of India, the acts of India. So you will learn about finance, you will learn about accounting, you will learn about some concepts of management and the technology used in accounting and finance, but not the law of India. So if you are willing to work in India only, then you have to take a diploma course in law, because agar aap like as a finance head, agar suppose you are dreaming yourself to be a CFO of a startup or CFO of a company, then they will, in the interview they will expect that you know about India, you know about Indian law, how Indian finance acts. You have to know all this. So CPA is a good option, but CPA with relevant experience will matter. मतलब CPA के बाद अगर आप 2 साल कहीं जॉब कर लेते हो and आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, then you can go to a good height, as per my understanding and my experience. अगर आप CA करते हो, then getting a CPA degree becomes much more easier. अगर CA क्लियर करते हो, ICAI के साथ CPA ऑस्ट्रेलिया का एक MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, with which you can get exemptions in majority of subjects. I guess कुछ 3 या 4 subjects total, I think more than जितने भी total subjects है, you have to give only 2 or 3 like ethics हो गया, which are not covered in CA but they are in CPA. So
that becomes much more easier to you if you have CA degree already. नहीं तो आप CPA भी कर सकते हो. CPA you can give any time in the year, but हाँ, of course it is bit costlier than CA. Yeah, but scope I would say if it is much more better in abroad than like अगर आप दुबई या दुबई में भी इसका स्कोप है, like CPA has a good scope in Dubai too. ओके सर, तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. एक्चुअली No. काफी चीजें मुझे भी क्लैरिटी आई कि प्रोफेशनल कोर्स में इसको कहाँ पे डालना चाहिए, काफी नहीं. बट सर वैसे नॉन कॉमर्स के लिए ऐसे टेक फील्ड में जाना, लाइक डेटा एनालिस्ट एंड समथिंग लाइक दिस, क्या आप इसमें क्या अपना पीओवी दोगे निखिल के लिए? Yeah, there is some scope. For example, like the company currently I'm working with, we are into transaction advisory and due diligence. Like आप अगर do you watch Shark Tank, right? Yes. तो शार्क टैंक में कोई भी इन्वेस्टमेंट जब किसी को मिल जाता है, उसके बाद एक प्रोसेस होता है ड्यू डिलिजेंस करके, ठीक है. ड्यू डिलिजेंस जो प्रोसेस होता है वो हम लोग करते हैं, ठीक है. सो देयर आर मल्टीपल स्टार्टअप्स व्हिच कम एंड वी डू द ड्यू डिलिजेंस ऑफ देम. तो उसमें डेटा एनालिसिस कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ, सेक्रेटरियल हेल्थ, देन ओवरऑल कंपनी जो प्रोजेक्ट व्हाटएवर दे आर प्रोजेक्टिंग, वेदर दे आर एक्चुअली गोइंग टू मीट और नॉट, वी गिव वैल्यूएबल इनसाइट ऑन दैट. तो इसमें डेटा एनालिसिस का पार्ट आता है. एंड कंपनीज लाइक मॉर्गन स्टैनली, देयर आर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट कंपनीज लाइक जेपी मॉर्गन हो गया, मुंबई में बहुत सारी कंपनियां, देयर आर आल्सो बुटीक फर्म्स हु आर वर्किंग इनटू दिस फील्ड. Capgemini हो गया. So they hire some data analysts and data scientists. So if you're in from a non-tech background, then you have to do some courses. There are multiple courses available. कुछ softwares you have to be good at. First तो of course undeniably Excel है. Second is Power BI. Third is Tableau and a little bit Python. यस सर, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग सर. एक्चुअली मेरा जो बड़ा भाई है वो डेटा एनालिस्ट ही कर रहा है, and he is pursuing data analyst also. Yeah. But Nikhil बहुत rigid है, and then he is saying that no I want to just do CA. इसलिए हमने सेशन बुक किया था कि इसको रियलिटी चेक थोड़ा मिले कि is he able to do CS. और ये सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में तो सिर्फ CA नहीं कर रहा है, बिकॉज यू नो, क्योंकि मैंने मेरे फ्रेंड्स में भी देखा है वो लोग फाउंडेशन उनके थर्ड टाइम में, बट वो फाउंडेशन भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं. दैट्स व्हाई यही बिग कंसर्न था. थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, एंड काफी सारी चीजें पता चली. एंड इफ अगर कुछ डाउट होगा तो देन वी विल बुक योर सेशन Yeah, so नेक्स्ट I टाइम. am putting the mail. You can just mail me. यस Just, सर, ओके. yeah, this is my mail. You can just mail me. I would be happy to resolve your doubts.